میں اقلیتوں کو اور جو دبے کچلے سماج ہیں ہندوستان میں، ان کے لیے بہت ساری تکلیفیں اور دقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ہر سماج کو برابری کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہندوستان کا سنویدھان ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن، اس کی تمہید بھی آپ پڑھیں گے تو تمہید برابری اور مساوات کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، جسٹس کی بات کرتی ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے سنویدھان میں سب کو برابری بھی دی گئی ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرنے کی گارنٹی بھی دی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب حکومت کی کرسیوں پر ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں بے ایمانی ہوتی ہے، تو پھر وہ نہ سنویدھان کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے لوگ سماج کے اندر رہ رہے لوگوں کے حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ وطن عزیز بھارت جو ہمیں اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ پیارا، کیا اس وطن کی آزادی کے لیے ہر سماج نے قربانی نہیں دی؟ کیا اس وطن کی آزادی کے لیے تمام مذاہب کے لوگ مل کے نہیں لڑے؟ لیکن افسوس جنہوں نے وطن کے لیے کچھ نہیں کیا آج وہ وطن کے ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ ہم وفادار وطن ہو کے بھی آج نبیل و خوار ہیں اور سرخ رو وہ ہیں یہاں جو واقعی غدار ہیں۔ بڑے تاریخ ہندوستان کی آزادی کی، ہم ہندوستان میں کرایہ دار نہیں ہیں، الحمدللہ یہاں کے باشندے ہیں، برابری کے حقدار ہیں۔ گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا، اور آج خود حکومتیں بھی ملوث ہیں فسادات میں، تخت سے ایسے سخت نشینوں کو ہٹانا ہوگا۔ آج ضرورت ہے ہندوستان کے اندر جو ہندوستان سے وفاداری کرنے والے، ہندوستان سے سچی محبت کرنے والے ایسے سارے سماج آگے آئیں، آگے بڑھ کے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں، اس لیے کہ یہ آواز اٹھانے کا حق ہمارے سنویدھان نے دیا ہے، ہمارے قانون نے دیا ہے۔ آج بھی آوازیں نہیں اٹھاؤ گے تو تمہاری آوازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے، ظالم کے راستے کو آسان نہیں ہونے دینا ہے۔ جو لوگ یہ سماج میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ایسی نفرتوں کے خلاف کل بھی ہندوستان متحد تھا، آج بھی ہمیں متحد کر کے رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام امن پسند لوگ جب متحد ہوں گے تو کسی نے ہمت نہیں ہوگی ہندوستان میں ناانصافی کرنے کی، ہندوستان کے اندر نفرت کی آواز بلند کرنے کی۔ امن، بھائی چارہ، محبت، یہی تو وہ عناصر ہیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو کسی سماج کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج ضرورت ہے ہندوستان میں محبت کی آواز کو بلند کیا جائے، امن کی آواز کو، انصاف کی آواز کو بلند کیا جائے۔ امن اور انصاف ہوگا تبھی وطن مضبوط ہوگا۔ آج ملک کے حالات ایسے ہیں، کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے لوگ نفرتی بیانات جاری کرتے ہیں۔ کیا یہ آپ نہیں دیکھتے مسلمانوں کے خلاف کیسے نفرتی بیانات جاری ہوتے ہیں؟ کئی مذہبی مقامات کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کئی مساجد پہ ٹارگیٹ، کئی مدرسوں پہ ٹارگیٹ، اور اب تو ایک ایسی وبا پھیل گئی جسے دیکھو اسی کام پہ لگا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے حکومتیں ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں جو فرقہ پرست طاقت ہے۔ مدارس کے خلاف پٹیشنیں لگائی جا رہی ہیں کہ قرآن کی تعلیم نہ ہو، حدیث کی تعلیم نہ ہو۔ کہ جو آزادی ہمیں ہمارے سنویدھان نے دی تو وہ آزادی ہم سے چھین لو گے؟ نہیں، سنویدھان میں وہ طاقت ہے اور ہمیں انہیں سے تو ہوں گی۔ ایسے وقت میں ہماری امیدیں کورٹ سے ہوں گی، ایسے وقت میں ہماری امیدیں ہمارے ججز سے ہوں گی۔
आज उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। इस नाजुक वक्त में वतन अजीज भारत को संभालना होगा, गुलशने हिंद को शोरों से बचाना होगा, आतिशे बुग़्ज़ व अदावत को बुझाना होगा। अरे इस वतन के लिए मुसलमान अपनी नमाजों में दुआएं करते हैं, अपने त्योहारों में दुआएं करते हैं, ईदगाहों में जमा होते हैं, तो सबसे पहले अपने वतन की हिफाजत की दुआ करते हैं। फूलों का मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों का जगमगाता हमारा वतन रहे, इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, इल्म की खुशबू को फैलाता हमारा वतन रहे। तो हम जब तमन्ना करते हैं हमारा वतन फूलों की तरह मुस्कुराए, लेकिन ऐसे मुस्कुराएगा जब कौमों को आपस में लड़ाया जाएगा। तो पुलिस को वर्षी कह के एक समझौता कि 1947 में जो इबादतगाह जिस हालत में थी उसको वैसे ही रहने दिया जाए, अब उसके बारे में कोई नुक्ताचीनी और आपस में इख्तिलाफात पैदा नहीं किए जाए। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हमें पुराना खंगालना है। तो अगर आप हिंदुस्तान के पुराने इतिहास में जाएंगे तो जो लोग अपने इतिहास की बात करते हैं उनसे पहले भी किसी का इतिहास है, क्योंकि वो जानते ही नहीं, उनसे पहले भी इतिहास है। अगर आप इस झगड़े में जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है। और हम मुसलमानों का तो बिलीव है इस बात पे, हमारे बाप, सारी इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले से हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो हम तो मानते हैं सबसे पहले इस हिंदुस्तान में हम आए। तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर तारीख तो बड़ी लंबी है। आजाद हिंदुस्तान को जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, आज ऐसे लोगों की लगामों को कसना होगा। वर्ष बैंक को भी चैलेंज किया जा रहा है कि कानून कहा और हमने सब्र कर लिया और हमने हर चीज को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसी उम्मीद पे ना कि आगे तो जाके हालात संभलेंगे। वादे किए गए बड़ी बड़ी बातें कि आगे अब नफरतें नहीं फैलेंगी, लेकिन मसला ज्ञानवासी का फिर वहीं आके उसके बाद कहते हैं कि अभी मथुरा की बात होगी, कहते हैं अभी तो हमारी 300 मस्जिदों की लिस्ट है, सारी मस्जिदें छीनेंगे। क्या ऐसे हिंदुस्तान चलेगा? हमारे मीडिया के लोग यहाँ आए हैं, मीडिया की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मीडिया वाले पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन इस वतन अजीज में कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो पैसों में देख के सच्चाई नहीं दिखाते, सिर्फ झूठ दिखाया करते हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह इसे मीडिया वालों को समझ दे। मीडिया एक स्तंभ और सुकून होता है वतन का। मीडिया लड़खड़ाया तो वतन तो कमजोर होगा। इसलिए जो भारतीय मीडिया है उसको अपनी जिम्मेदारी को मीडिया पे लानत है, ऐसे मीडिया पे जो बेकसूर को मुजरिम बना के अदालतों से पहले खड़ा कर देता है। गर्दनें कटाई है, मुफ्तियों ने अपनी कुछ लोगों की राजनीति ही नफरत पे टिकी है, कुछ है ही नहीं उनके पास, तो वो तो मजबूर है बेचारे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के समाज को, यहाँ की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनको तो सोचना चाहिए ये लोग अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हिंदुस्तान की बलि चढ़ा रहे हैं, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिशें कर रहे हैं, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। इसलिए इस नफरत से हिंदुस्तान को हम सब मिलकर बचाएंगे, इंशाअल्लाह भारत खुशहाल होगा, भारत तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। अल्लाह करे हमारा हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, भारत खूब आगे बढ़े। और हम तो बड़े नाज से, बड़े फख्र से हमेशा ये बात कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे हम मुल्क नहीं होती, गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा फूलों से मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों से जगमगाता हमारा वतन रहे। इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, इल्म हुनर सिखाता हमारा वतन रहे। टूटे ना है फरीदी कभी एकता की डोर, सबको गले लगाता हमारा वतन रहे। ये जो मुफ्तियां और आलिमा होते हैं ना, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये हर समाज के आदमी को अपने सीने से लगाने वाले होते हैं। तुम कैसे बदनाम कर रहे हो मुफ्तियों को और कैसे बेइज्जती के साथ चैनलों पे नाम ले रहे हो? शर्म करो, शर्म गोदी मीडिया, शर्म करो, शर्म गोदी मीडिया, शर्म करो, शर्म गोदी मीडिया।
अच्छे लोगों को जब गलत बना दोगे, तो गलत लोगों को बना दोगे हीरो, तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा, हो जाएगा जीरो। इसलिए हिंदुस्तान तरक्की कब करेगा? जो अच्छे लोग हीरो बने और जो गलत लोग हैं उनकी जगह मैदान में नहीं, उनकी जगह या तो सलाखों में है या फिर वो सुधार कर अच्छे इंसान बन जाएं। मैं इन जुमलों पर अपनी बात को खत्म कर, क्योंकि हैदर कर्रार में मोहब्बत और तालीम और प्यार की दुनिया में तालीम दी। हम हैदर कर्रार के मानने वाले कल भी अमन और प्यार की बात कर रहे थे, आज मरकज़ी सुन्नी जामिया मस्जिद कमेटी शिमोगा और मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा कमेटी शिमोगा, जो शहर शिमोगा के दो मरकज़ी इदारे हैं, उनके ज़ेर एहतमाम शहर शिमोगा के उलमा, अवाम और अमाइदीन यहाँ मरकज़ी सुन्नी ईदगाह मैदान में जमा हुए। मकसद है कि एहतजाजी मुज़ाहरा करना और एक ख़ास मसले पे अपनी बात रखना। वो ये कि अभी हालिया दिनों में गुजरात में हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो बड़े ही अमन पसंद और समाज की सेवा करने वाले, समाज की इस्लाह करने वाले आलिम दीन हैं, उनका एक जगह अवामी प्रोग्राम हुआ। उनकी एक स्पीच को लेके बिना वजह उन पर केस किया गया और उन्हें फंसाने की साजिशें की गईं। तो मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह खबर मिली है कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। तो हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए जमा हुए कि इस तरह से जो मजहबी कायदीन को तकलीफ़ दी जा रही है, वो अपनी बात भी नहीं हुए हैं, अपनी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए और ये मुतालबा करने के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए, तमाम केसेस उनके ख़िलाफ़ जो शिकायतें की गई हैं उनको वापस लिया जाए और हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जो जेल के अंदर बंद हैं उन्हें भी बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो इस तरह से जो मुसलमान मजहबी कायदीन के ख़िलाफ़ ये साजिशें हो रही हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, इन लोगों को रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ हमारे वतन अज़ीज़ भारत में कुछ लोग जो नफ़रतों का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें, हम ये बात रखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये नफ़रतों की बातें ख़त्म की जाए, हिंदुस्तान को प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, एकता से, भाईचारे से आगे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान की शान इसकी एकता है, इसकी अखंडता है। हिंदुस्तान जब तक एक रहेगा आगे बढ़ता रहेगा। लिहाजा ये जो नफ़रती बातें हो रही हैं इनको बंद करना चाहिए। यही बातें हमारे सारे उलमा ने यहाँ रखी और हमारा यही मैसेज और पैगाम है, ये नफ़रतों की बातें ख़त्म हों, हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ, अमन, एकता, भाईचारे के साथ आगे बढ़े। अल्लाह करे हमारा वतन अज़ीज़ भारत खूब तरक्की करे। और एक ख़ास मसला ये कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट से पास हुआ, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने समझौता किया कि आज़ादी के बाद जो मजहबी प्लेसेस हैं उनके बारे में कोई और नया झगड़ा न खड़ा किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नफ़रतें इतनी पनप रही हैं, वो फिर पुरानी चीज़ों को कुरेदना चाहते हैं, वो फिर उन इख्तलाफात को शुरू करना चाहते हैं जिनकी अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इस तरह से जो मस्जिदों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, मजहबी प्लेसेस के मामलात को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, हमारी ये भी पुरज़ोर अपील है, हमारा ये मुतालबा है, इस तरह मस्जिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना बंद किया जाए। सब अपनी अपनी इबादत खानों में अमन के साथ, शांति के साथ, अपनी अपनी आज़ादी के साथ इबादतें करें। अब किसी और की इबादत में दखल अंदाजियों की कोशिशें न की जाएँ। मस्जिदों पर हमले करना, मस्जिदों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करना बंद किया जाए। अल्लाह करे हमारा हिंदुस्तान अमन के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़े। हमारे मीडिया के लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने यहाँ आके हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम किया है, सबके हम दिल से शुक्रगुजार हैं। जितने अवाम, उलमा, कायदीन और जितने भी अमन पसंद लोग यहाँ जमा हुए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं मोहम्मद आकिल रज़ा मिसबाही, ख़तीब व इमाम, मरकज़ी सुन्नी जामे मस्जिद, गांधी बाज़ार, शिमोगा।